the queen of controversies, who not only wrote in Punjabi but in Hindi also, and most of her works were translated into English. Friends, she wrote her autobiography by the name The Revenue Stamp. Many more her novels were directed into the films like Pinjar. The poems such as Punjabi poems, Shadows of Words, Life and Poetry, and many more works at her hand. Friends, ऐसे इस राइटर का नाम है अमृता प्रीतम. The queen of controversies we can call her. And friends, ऐसे इस राइटर को आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं. आज के इस YouTube चैनल के मेरे सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. एंड लेट अस टर्न टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक ऑफ अमृता प्रीतम. आज हम अमृता प्रीतम जी के एक पोएम स्टडी करने जा रहे हैं विच इज टाइटल्ड एज द विल. उससे पहले हम उनका थोड़ा परिचय जान लेंगे. फ्रेंड्स, अमृता प्रीतम जी का जन्म 1919 में पंजाब में हुआ था. And she died on 31st October 2005 at the age of 86. She died in Delhi. उनके पहले पति का नाम था प्रीतम सिंह and she got divorced with him after few years. But though she engaged with others, she continued the name of her husband, Pritam, Amrita Pritam. So friends, let us see about her works. देखिए यहाँ पे मैं आपको ये पोयम पढ़ने से पहले कुछ अमृता प्रीतम जी के बारे में बताने जा रही हूँ. Amrita Pritam was the first female Punjabi writer to gain a widespread recognition, and her works have been translated into numerous languages throughout the world. Friends, she was a pioneering poet and writer. Her work has influenced generations of Indian writers, and her works are still being admired today. As I have already mentioned some of her works like The Revenue Stamp, to which we translate into Hindi as The Receipt Ticket. Then Pinjar is the film. Then Life and Poetry, Shadows of Words, Punjabi poems. So these are some of the works which she had written and I have mentioned here. As I have already told you that she is the queen of controversies. The basic reason behind that was she had left her husband with 2 children, and her husband told her that you are a writer and you need to be free to write. But it cannot happen while we are together. So both of them divorced, and after that she had certain relationship with Shahir Ludhianvi. But the mother of Shahir Ludhianvi was reluctant to the marriage between the two, and that is the reason why she became very unhappy and sorrowful. But later on she had developed her relationship with another person, and that was the painter named Imroz.
and their relationship became very famous, and few of the poems have been composed on their relationship also. ऑलरेडी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अमृता प्रीतम एक क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज के नाम से भी जानी जाती है। उन्होंने अपने पति को डिवोर्स दिया था, या फिर पति ने उनको डिवोर्स दिया था। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनका डिवोर्स हुआ था, और उनके पति का ये कहना था कि जबकि आप बहुत बड़ी लेखिका बनना चाहती है, तो शायद उसके लिए प्रॉपर सराउंडिंग आपको हमारे इस रिलेशनशिप में ना मिले, तो बेहतर होगा हम डिवोर्स ले लें। डिवोर्स होने के बाद भी अमृता जी ने अपने पति का नाम कंटिन्यू रखा, और उनका नाम था प्रीतम सिंह। तो शी इज नोन बाय हर हस्बैंड्स नेम अमृता प्रीतम। प्रीतम सिंह जी से जब उनका डिवोर्स हुआ, तो उसके बाद उन्होंने एक सिंपोसियम में उनका परिचय शाहिर लुधियानवी से हुआ था, और उसके बाद उन दोनों में एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया था। उस रिलेशनशिप के चलते दोनों ने शादी करने की तय कर ली थी, लेकिन लुधियानवी जी के माता जी ने इस शादी को मना कर दिया, और इसके कारण वो बहुत दुखी हो गई थी। उसके बाद उनका और एक अफेयर चला। एक पेंटर थे, उनका नाम था इमरोज, and that relationship between Imroz and her became very popular, and most of the poems have been composed on their relationship also. See friends, today's poem which we are going to study, that is The Will by Amrita Pritam. Throughout this poem she has written many more things, and this poem is dedicated to each and every person who are living in the society. That means the women, the youth, the soldiers, the aged people, and for the children, every strata of society, or each and every stage of life of society has been touched by her in this poem. And what she says, what she is going to contribute to each and every strata of the society, that is given to us, or that is explained to us throughout this poem. देखिए, मैं अब पहले तो मैं लाइन बाय लाइन इसे रीड करती हूँ, एंड आफ्टर दैट आई शैल एक्सप्लेन इट टू यू। द विल बाय अमृता प्रीतम। After my death, ransack my room, search each atom that is scattered, unlocked everywhere in my house. Donate my dreams to all those women who, between the confines of the kitchen and the bedroom, have lost their world, have forgotten years ago what it is to dream. So, friends, first of all, she has written a will. विल, पहले तो हमें WILL विल इस वर्ड का मतलब जान लेना है। विल है जो कि हम इसे कहते हैं कि मरने से पहले हमारी जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है, मूवेबल या फिर इमूवेबल, उसे हम किसी के नाम कर देते हैं, तो उसे हम विल कहते हैं। मृत्यु पत्र ऐसा भी इसमें लिखा जाता है, उसे कहते हैं। तो वो यहाँ पे अपनी विल लिख रही है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत सोच समझ कर उन्होंने अपनी ये विल लिखी है। देखिए, पहले तो जो कुछ भी उनके पास है, तो वो पहले किसे डोनेट करना चाहती हैं? उन कॉमन विमेन को वो डोनेट करना चाहती है, जो कि चार दीवारी से बाहर नहीं निकल चुकी है, या फिर नहीं निकल सकी है अपने पूरे लाइफ में। और वो कहती है कि मैं पहले अपनी जो कुछ भी ड्रीम्स है उनके नाम कर देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि व्हाट इट इज टू ड्रीम। तो सो फ्रेंड्स, वो कहती है कि पहले मेरे मरने के बाद मेरा रूम आप पूरी तरह से सर्च कर लेना,
और जो कुछ भी पड़ा है उसमें देख लेना कि क्या क्या है। उसमें आपको मेरे ड्रीम्स दिखेंगे। डोनेट माय ड्रीम्स। अगर मेरे ड्रीम्स मिले तो वो ड्रीम्स किसे किसे डोनेट करने हैं? डोनेट माय ड्रीम्स टू ऑल दोज वीमेन हु बिटवीन द कन्फाइंस ऑफ द किचन एंड द बेडरूम हैव लॉस्ट देयर वर्ल्ड। वो कहती है कि मेरे जो ड्रीम्स है वो ऐसे लेडीज को या फिर ऐसे महिलाओं को डोनेट करना जो कि चार दीवारी में बंद है, घर के किचन के चार दीवारी में और बेडरूम के चार दीवारी में बंद है। उनका जो लाइफ है पूरा दैट इज कन्फाइंड रिस्ट्रिक्टेड टू द किचन एंड टू द बेडरूम ओनली। जिन महिलाओं ने अपना पूरा लाइफ सिर्फ अपने किचन में और अपने बेडरूम के कर्तव्यों में बांध दिया है या फिर पूरा लाइफ उसी में बिताया है, तो उनको मेरे ड्रीम्स क्या करना है? डोनेट करना है। और शायद उन महिलाओं को ये भी पता नहीं होगा कि what it is to dream. They might have forgotten years ago what it is to dream. और अपने कर्तव्यों को पूरा करते करते शायद ये महिलाएं ये भूल चुकी हैं कि सपना देखना क्या होता है। तो इन ऐसी महिलाओं को मेरे ड्रीम आप डोनेट कर दो, जो शायद डोनेट करने के बाद ड्रीम्स देखना शुरू करे कि इन चार दीवारों के बाहर कैसे जाना है और दे हैव टू फाइंड देयर एग्जिस्टेंस। उनका अस्तित्व उनको खोजना है और हम कौन हैं इस विश्व में, हमारी क्या पहचान है, या फिर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? सिर्फ खाना पकाने के लिए, किचन में रहने के लिए, या फिर पति की सेवा करने के लिए, बेडरूम में रहने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं, बल्कि और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब तक वो बाहर नहीं निकलती तब तक उन्हें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए उनको मेरे वो सारे सपने दे दो जो कि शायद उन्होंने देखना बंद कर दिया है या फिर वो भूल चुकी है कि वो भी सपने देखने का हक रखती है। तो उन लेडीज को ये अवेयरनेस कर दो मेरे ड्रीम्स डोनेट करके कि वो भी सपने देख सकती है। स्कैटर माई laughter among the inmates of old age homes whose children are lost to the glittering cities of America. So what she is saying now कि मेरी जो हंसी है वो उन ओल्ड एज पीपल को दे दो जो ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं, जिनके बच्चे बड़े होके फॉरेन कंट्रीज में जा चुके हैं जैसे कि अमेरिका में। तो वो ओल्ड एज पीपल अभी बहुत ही अपसेट और नर्वस हो चुके होंगे क्योंकि थ्रू आउट देयर लाइफ दे हैव देयर हार्डशिप्स while growing their children, and through their hardships also they have made the life of their children or future of their children very bright. But now these children who have traveled to the uh, foreign countries, they have forgotten that they have the old aged parents and they need to be taken care. So मेरी जो हंसी है, मेरी जो खुशी है, तो उस खुशी को आप उस ओल्ड एजेड पीपल को डोनेट कर दो जो कि अपने बच्चों से बहुत दूर ओल्ड एजेड होम्स में रह रहे हैं और उनके बच्चे उनसे दूर कहीं परदेश में जाके रह रहे हैं बहुत हंसी खुशी से। लेकिन ये जो एजेड पीपल है वो खुश नहीं है। तो मेरी जो खुशी है, मेरी जो हंसी है, उन ओल्ड एजेड पीपल्स को आप डोनेट कर दो, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। So friends, next she says, there are some colors lying on my table, with them dye the sari of the girl whose border is aged with the blood of her man, who wrapped in the tricolor was laid to the rest last evening. So अब वो यहाँ पे कहती है कि मेरे टेबल पे कुछ कलर्स हैं और उन कलर्स को आप उस लड़की को डोनेट कर दो जिसका पति शायद बॉर्डर पे था और वो उसका वो
देहांत हो गया है या फिर वो शहीद हो गया है और उसकी जो डेड बॉडी है वो लास्ट इवनिंग पर अपने तिरंगे में लपेटी हुई उसके घर भेज दी गई है और उसकी लाइफ अब पूरी तरह से कलरलेस हो गई है। तो मेरे जो सभी कलर्स है टेबल पे रखे हुए, तो वो सभी कलर्स आप उस लड़की को डोनेट कर दीजिए जिसका पति शहीद हो गया है। There are some colors lying on my table. With them dye the sari of the girl whose border is aged. With the blood of her man who wrapped in the tricolor was laid to rest last evening. Give my tears to all the poets. Every drop will birth a poem, I promise. And मेरे जो आंसू हैं वो सभी आंसू आप पोएट्स को डोनेट कर दीजिए। देखिए कितनी सुंदर उनकी ये थॉट प्रोसेस है कि अगर मेरे सभी आंसू आप पोएट्स को डोनेट करते हैं तो उन एक एक आंसू में से एक नई नई कविता उभर आएगी या फिर वो लिख सकेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। गिव माई टीयर्स टू ऑल द पोएट्स, एवरी ड्रॉप विल बर्थ अ पोएम, आई प्रॉमिस। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप मेरे टीयर्स डोनेट करने जा रहे हैं पोएट्स को, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ ईच एंड एवरी टीयर विल गिव बर्थ टू अ न्यू पोएम, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अश्रु का रूपांतर किस में होने जा रहा है? शब्दों में। और शब्दों, वो शब्द किसके हैं? पोयम के हैं। और वो पोयम किसकी होगी? अमृता जी की होगी। तो ऐसा एक मैसेज उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है। गिव माई टीयर्स टू ऑल द पोएट्स, एवरी ड्रॉप will birth a poem, I promise. Make sure you catch the youth of the country, everyone, and inject them with my indignation. They will need it come the revolution. तो अब यहाँ पे उन्होंने यूथ को डेडिकेट किया है और वो कहती है कि मेक श्योर यू कैच द यूथ ऑफ द कंट्री, एवरी वन, एंड इंजेक्ट देम विथ माई इंडिग्नेशन। तो वो यहाँ पे कहती है कि मेरा जो इंडिग्नेशन है वो हर एक यूथ में आप इंजेक्ट कर दो, जिसकी वजह से शायद उनमें एक क्रांति की भावना जग जाए। जो भी रिसेंटमेंट है आज के यूथ में, दे आर नॉट एबल टू disclose that in front of the proper people, and they need to raise their voice in front of the people, but they don't dare, they don't feel the necessity, but it is necessary to revolt or raise the voice, and it needs the guts. And what I have to do, what you have to do, you have to inject my indignation to these youths in order to uh, make their guts very strong. So that is the feeling of Amrita ji, and she says that मेरी जो भी इंडिग्नेशन है, मेरे जो भी गट्स हैं, तो उनको आप डोनेट कर देना यूथ को, जिसकी वजह से शायद वो अपनी आवाज उठाने में स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद वो कहती है कि my ecstasy belongs to that Sufi who, abandoning everything, has set off in search of God. तो मेरी जो एक्सटेसी है तो वो सूफी को, संत को दे देना, जो कि अपनी पूरी लाइफ गॉड को सर्च करने में लगा दी है। तो ये जो मेरी पूरी एक्सटेसी है, तो उसे किसे देना है? सूफी को देना है, संत को देना है, एक जो महात्मा है, संत महात्मा है जो ईश्वर के सर्च में निकला है, तो उसे दे देना, जिसकी वजह से शायद वो फील कर सके कि क्या यूथ है और क्या लाइफ है। फाइनली शी सेज, what is left
my envy, my greed, my anger, my lies, my selfishness. This simply cremate with me. और जो कुछ भी फिर इसके बाद बच जाता है, my envy, that is my jealousy, my greed, longing for something, my anger, my lies, माय सेल्फिशनेस, ये सब जो है, ये जो है, ये निगेटिव फैक्टर्स जो है उनके, तो वो सभी मेरे साथ ही क्रिमेट कर देना है या फिर मेरे साथ ही भस्म कर देना है, जला देना है, दफना देना है। ऐसा एक फाइनल मैसेज उन्होंने कहा है। जो निगेटिव फैक्टर्स है उनके पर्सनालिटी के, तो वो सभी मेरे साथ ही क्रिमेट कर दो, उनको किसी को डोनेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक मैसेज उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो इस तरह से ये पोयम यहाँ पे समाप्त हो जाती है फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर तरीके से अमृता प्रीतम जी ने अपने लाइफ के पॉजिटिव फैक्टर्स को सोसाइटी के कुछ लोगों को देने के लिए कहा है। और शायद ये भी एक तरह से हमारी प्रॉपर्टी ही है जिसकी विल हम बना सकते हैं। और अमृता प्रीतम जी ने ये संकल्पना जो है, जो कि क्या कह सकेंगे हम, कि ऐसे जो वर्चूज है उनके, तो वो सभी वर्चूज उन्होंने अपनी सोसाइटी के लोगों में डोनेट करने के लिए कहे हैं। और इसकी वजह से शायद उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इतनी सुंदर सी कविता उन्होंने लिखी है। आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू माइट हैव अंडरस्टूड द पोयम. If any doubt, please comment me in the comment section. Thank you for watching this video. Thank you very much.